Good afternoon, everyone. Hope all you are doing well. So, today I'm going to discuss the remaining portion of MCQs of the chapter India and World. Okay, in our last class, we have completed 8 questions from this chapter, and our last question was Holy Empire was based on Holy Roman Empire. Okay, so yesterday I told you that how you have to solve any MCQs or PYQs of prelims based any exams, be it UPSC or SSC or any kind of exams, right? First of all, you have to read the question, you have to understand the concept or topic they are talking about, then find out the three simple questions of that particular topic, and that is what, when, and why. Clear? So, follow this method. We will discuss remaining 10th or 11th questions from this chapter. Clear? Okay. Now, so as I told you that whenever you solve any content or any concept about history, then first of all, you have to understand, you have to find out the answer of three simple questions, and that is what, when, and why. With with getting the answer of these three simple questions, your concept will be more clear. Okay, your understand will be more enhanced, right? So after following this method, we are going to discuss about feudalism. So before solve this question, we have to know or we have to understand that what feudalism is, when this system was emerged, and why this system is so important to us. Okay, so first of all, just a minute. Okay, now तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म, व्हाट, then when, and then why it is so important. So, feudalism is a hierarchical social, political, economic system. Okay, so feudalism is a hierarchical social, political, and economic system that emerged in Europe. Okay, so which talks about the emergence of any system under the tagline of when. Okay, so this is a hierarchical, social, political, and economic system. Clear now. So, one more thing that this system always focused on land ownership and social status. Clear now. So, under when emergence of any system will arrive. So when it was emerged, this feudalism was emerged in Europe during Dark Ages.
Dark Ages means when Roman Empire was declining. Okay. Now, why feudalism is important to us? First, this system provided framework for organizing society. Okay. Then number two is this system maintain social order. Okay. And number three, that with these positive sides, it also have some negative sides, right? That this system is also created exploitation, okay, limited opportunities. So it also includes or leads exploitation, limited opportunities. Okay, now so we have learned that what is feudalism, when it was emerged, and why it is important to us. Okay, so after knowing these concepts, now we can give the answer that feudalism is a system of having two-tier system, three-tier system, four-tier system, or more than that. So feudalism, we have seen that here. Here in this picture, you can see that in feudalism, there are four parts. Top of this system is for placed for king. Okay. So here you can see that king was king was there. After king, landlords or officers or nobles were there, okay, who provide services in exchange of land, and they were known as landlords. After landlords or nobles or officers, vessels are there. Who, these vessels are also known as knights. So same as officers, vessels also provide military services, administrative duties to landlords or nobles in exchange of land. And then under vessels, peasants or serfs are there who provided services, different kind of services to vessels and revenue to vessels in exchange of land and protection. Okay, so in this system, we can see that there are four parts or four tier. Tier means what? Tier means part. Okay, so tier means segment. Tier means segments or parts. कितने parts हैं, कितने segments हैं? So in feudalism we can see that there are four parts. First, king, below them officers, nobles or landlords are there. Number three is vassals or knights, and number four is about peasants and serfs. So feudalism was a system having four tier system, or feudalism is a system of four tier system. Clear? So answer of the question 9 will be number C. Is that clear? Okay, now. So here you have to match the following, that nobles are known as knights, serfs, and landlords. Vassals are known as, uh, you have to find out from these three, and peasants. So in the feudalism system, we have seen that nobles are the landlords, right? Nobles or landlords or the officers, the owner of land. Okay, then we can see that after noble there are one segments that is known as vassals
or they are known as knights. So get land from nobles in exchange of military services and administrative duties. Is that clear? So, knights or vassals are the same person who get land from nobles in exchange of military services and administrative duties. Clear? Okay. And as we know that peasants are known as serfs. So, in India, peasants are also known as serf. ओके कि ये इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है दैट पीजेंट्स आर नोन एज सर्फ। ओके, जो पीजेंट्स है वही सर्फ है। क्यों? क्योंकि ये जो नामकरण है, ये जो पीजेंट्स और सर्फ है, ये यूरोपियंस ने दिए थे, राइट। और इन्होंने अपने फ्यूडल सिस्टम में जो देखा था, जो जाना था, वही उन्होंने इंडिया में भी यूज। इज व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? ये इंस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? हम सब जानते हैं कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शन। दैट सबसे पहले इंस्क्रिप्शन को जानने के लिए भी यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी हमें 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट, देन व्हेन एंड व्हाई। Why inscriptions are so important to us? Okay. तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन क्या है? Inscriptions are writing, okay, or carving on hard surfaces. जैसे कोई ये एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर किसी ने या तो लिख दिया होगा, क्लियर, या किसी ने एनग्रेव किया होगा, कुछ एनग्रेव करके लिखा होगा, ताकि ये जो पिलर है, यहाँ पे जो राइटिंग्स है, ये काफी सालों तक एज इट इज रहे और आने वाले जनरेशन इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जान सके। क्लियर? उस टाइम के मतलब एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम पे, मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत सारे किंग्स ऐसे होते थे जो इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, ओके, या फिर लिखवाते थे, ताकि उनके बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, उनके एम्पायर्स के बारे में बहुत टाइम बाद भी लोग जान सके। क्लियर? ऐसा नहीं है क्योंकि उनको लगता था कि भाई वो जो आने वाले टाइम में लोग उनके बारे में जाने, लेकिन कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियस सी बात है, कुछ प्रूफ वो छोड़ के जाना चाहते थे। तो इंस्क्रिप्शंस आर वन ऑफ देम। फ्रॉम हियर वी कैन लर्न, वी कैन नो अबाउट our past ancestors, about our past dynasties, empires, right? तो ये inscriptions यही है। तो inscriptions what क्या है? Inscriptions is a writings, inscriptions are writings or engraving engraving on hard surfaces like stone, metal, pottery, मेटल के ऊपर, पॉटरी के ऊपर वो क्या करते थे? या तो लिखते थे या तो कुछ भी एनग्रेव कर देते थे। क्लियर? अब ये कब हमें एंशियंट पीरियड में दिखने में ये अवेलेबल थे बहुत सारे। इनफैक्ट ये मीडिएवल टाइम पीरियड में भी हमें देखने को मिलते थे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अस? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, it is important to us because
Inscription record important events, loyal decrees, and achievements. Okay. So inscription record important events, royal decrees, achievements. Clear? Now. So this inscription also helps historian to understand political, social, and economic conditions of that time period. Okay. So inscription also helps historians to understand political, social, and economic conditions of the past. Now, number three, they also helps to understand the development of script and languages. Script and language को develop मतलब script and language कैसे develop हुए, वो पहले क्या, कौन से डायनेस्टीज कौन से स्क्रिप्ट यूज करते थे, कौन से लैंग्वेजेस यूज करते थे, कैसे उस लैंग्वेजेस से, कैसे उस स्क्रिप्ट से मॉडर्न डे टाइम पीरियड में लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है. तो we can learn, we can understand that how our languages, our script also evolved from past to present time. All clear? So from inscription we can learn about the development and evolution of script and languages. Clear? So it also helps to understand the development and helps to understand the just a minute, 1 minute please. Good afternoon, 1 minute. Okay, so it also helps to understand the development and evolution of script and languages. Clear? So from inscription we can learn about the development and evolution of script and languages, how script evolved from past to present time, how languages evolved from past to present time. Is that clear? कि inscription क्यों हमारे लिए important है? Clear? So from this point we can learn that what is inscription, when they are made ancient period में, medieval period में, and most important thing that why they are important to us. So first they record important events, royal decrees, achievements. Okay, they help to historians to understand the political, social, and economic conditions of the past or particular time period. Clear? It also helps us to understand the development and evolution of script and languages. Is that clear? Is that clear? Okay. Now,
यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, वी नो अबाउट दिस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिफ। ये कैलिफ क्या है? A title head of Muslim community, a title head of Christian community, a title head of Jain community, or a title head of Hindu community. Any idea? Any idea about it? So, what is caliph? यहाँ पे भी caliph के बारे में हमें पहले ये जानना है कि ये caliph क्या है, when caliph का emergence हुआ था, and why it is important। हम क्यों कैलिफ के बारे में पढ़ते हैं, क्यों कैलिफ के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई, सबसे पहले इसका व्हाट जानते हैं कि कैलिफ क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है। सो कैलिफ और कैलिफेट, ओके। सो कैलिफ इज अ चीफ मुस्लिम एंड मुस्लिम सिविल एंड रिलीजियस, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट सिविल एंड रिलीजियस रूलर है। मतलब उनके रिलीजन के ऊपर अगर कुछ भी कोई भी नए रिलीजियन रिचुअल्स को लाना होगा, कोई ट्रेडिशन को चालू करना होगा, कोई ट्रेडिशन को करना होगा, तो ये सब कुछ wishes according to his choice of interest, everything will be happened clear, and कैलिफ ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। क्लियर? तो थे प्रॉफिट मोहम्मद का, और प्रॉफिट मोहम्मद वो थे जो फाउंडर ऑफ इस्लाम थे। क्लियर? देर प्रोफेट और अब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन होती है ये कैलिफ कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, वो ना हो। ठीक अब तो ruler and it also the successor of prophet Muhammad, okay। अब century AD, राइट, 5th century AD टू ऑनवर्ड्स, उसके टाइम पीरियड से ये जो सिस्टम है इन मुस्लिम इन इस्लाम ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। ओके, कैलिफ या कैलिफिकेशन है, ये जो रैंक है, व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू अस। ओके, ये जो कैलिफ है, इट रिप्रेजेंट अ सिंबल मुस्लिम। Caliph represent a symbol of Muslim। So कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी क्रिश्चियन और हिंदू और एनी अदर रिलीजियन, तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये जो सिंबल है, रिलीजियस सिंबल है, ये हो जाता है क्योंकि ज्यादा नहीं रहता है। तो ये जो कैलिफेट है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अ सिंबल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। क्लियर? नाउ इट also represent a religion
authority of Islam. Okay, तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इस्लाम, मतलब रिलीजियसली कोई डिसीजन लेना होगा, रिलीज पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेना होगा, तो ये कौन ले सकता है? फिर ले सकता है। क्लियर? व्यू से भी कैलिफेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम रिलीजियन के ऊपर अगर कोई एक डिसीजन ले सकता है ऑन दिस रिलीजियन, तो वो है caliph or caliphate is important to other people, okay, or to Muslim also, okay. Now, so हमने what when and देख लिया, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैलिफ क्या है। अ टाइटल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, अ टाइटल हेड ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, a title head of Muslim community. So our answer will be A. That is a title head of Muslim community. Is that clear? Okay. अब बात करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन पे फर्स्ट कैलिफ। यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद अबू बसीद, हम इन तीनों जो मुस्लिम एम्पायर के बिगिनिंग से रिलेट, अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें इस्लाम के बारे में लिटिल बिट कंफ्यूजन जो हो जाएगा क्लियर। और जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी, जब हम मिडिएवल पीरियड में एंट्री करेंगे तब हमें दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के बारे में जो एक कंफ्यूजन होता है अबाउट देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव, वो भी थोड़ा क्लैरिटी हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ सो here Prophet Muhammad, Prophet Muhammad फर्स्ट आता है, देन हम इनके बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे अबू बकर के, उसके बाद हम जानेंगे अबू मस्जिद के बारे में। ओके, सो और ये जो तीन लोग थे या फिर ये जो तीन लेजेंड्स थे, लेजेंड्स आल्सो बिलोंग फ्रॉम द बिग इस्लाम। ओके, सो इस्लाम, ओके, तो सो फाउंडर प्रॉफिट और व्हाट, ये फाउंडर ऑफ इस्लाम थे। ओके, उसके बाद ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये अरबी से थे। ओके, नाउ इनका टाइम पीरियड कब था? व्हेन 572 632 सेंचुरी एडी, तो ये इनका टाइम पीरियड था। क्लियर? ये हो गया प्रॉफिट मोहम्मद। अब हमें इससे ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत है। अबू बकर कौन थे? He was the senior companion, senior companion
close friend to Prophet Muhammad. ओके, तो इनके थे और बोला जा सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्लियर कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का एक सीनियर कंपेनियन थे, क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, अब इनके टाइम पीरियड का इनका टाइम पीरियड था 573 टू 634 सेंचुरी एडी। क्लियर, बात करते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑब्वियस ही बात है, सक्सेसर है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वाज इम्पोर्टेंट टू आफ्टर Prophet Muhammad. He took all charges of Islamic world. क्लियर कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड का सारा चार्जेस अपने ऊपर ले लिया। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही क्लियर, तो और इनका काम उस टाइम पे सिर्फ इस्लाम को फ्लोरिश करना ही नहीं था, नॉट ओनली फ्लोरिश बट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को स्प्रेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैलिफेट करने की जो स्टार्ट दी कैलिफ और कैलिफेट सिस्टम इन इस्लामिक वर्ल्ड। क्लियर कि इन्होंने कैलिफ और कैलिफेट सिस्टम को इस्लामिक वर्ल्ड में शुरू किया था। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले इन्होंने चार्ज लिया था इस्लामिक वर्ल्ड का आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था नॉट ओनली फ्लोरिश इस्लाम बट ऑल्सो स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब ये उन्होंने वो ये कैसे कर सकते थे? थ्रू ट्रेड, थ्रू कॉन्क्वेरिंग द वर्ल्ड, कॉन्क्वेरिंग थ्रू कन्वर्जन। मतलब कैसे वो ट्रेड करेंगे, उस जगह को वो कॉन्क्वायर कर लेंगे एंड देन दे देम इनटू इस्लाम। यही तीन वे हो। ओके, उसके वर्ल्ड में सबसे पहले कैलिफेट सिस्टम को स्टार्ट किया था। क्लियर एंड इस्लाम, इन्होंने कैलिफ बन के इन्होंने कैलिफ सिस्टम और कैलिफेट सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट किया था इस्लामिक। कि ये जो अबू बकर है ये कौन थे, ये कब आए, ऑर्डेंस क्या है इस्लामिक वर्ल्ड में। ओके, अभी बात कर लेते हैं अब्बासिद में। अब्बासिद कौन है? सो ये अब्बासिद बिलोंग्स करते हैं फ्रॉम अब्बासिद एम्पायर। ओके, अब्बासिद एम्पायर जो कि था इन अरब। अरब में एक अब्बासिद एम्पायर था जहां से बिलोंग करते थे ये अब्बासिद। ओके,
और इनका टाइम पीरियड कब था? सो इनका टाइम पीरियड था ऑलमोस्ट 750 टू 1253 सेंचुरी एडी, 8 सेंचुरी। अब तो हो रहा था मुस्लिमिक वर्ल्ड में, तो यहाँ पे अरब में उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर भी बन रहे थे। ओके ओके, अंडर द नेम ऑफ इस्लाम। वहां पे इस्लाम का इमरजेंस हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये मतलब अरब में ये अबू बकर का जो सीन था, ये अबू ओके। और एक बात, मक्का से बिलोंग करते थे और ये अरबियन थे। ओके, तो इस्लाम का इमरजेंस हुआ, उसके बाद कैलिफेट सिस्टम आया, इस्लामिक वर्ल्ड का मेन इंसिडेंट हो रहा था। सो एट द सेम टाइम छोटे छोटे और भी जो छोटे नाम से जाना जाता था, तो ये भी इस्लाम थे, इस्लामिक एम्पायर था। इनका टाइम पीरियड क्या था? 750 1253 सेंचुरी एडी था। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ जो ये है और गोल्डन एज माना जाता है ऑफ फॉर मुस्लिम बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ओके, सो टाइम पीरियड ऑफ Abbasid Empire. So time period of Abbasid Empire considered as golden age for Islam because just a because golden age for Islam because during that period of time culture, intellectuals, different kind of uh, religious development was happened. Okay, so golden age for Islam because of their intellectual and cultural development। क्लियर कि ये गोल्डन एज क्यों माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट था। क्लियर, तो आई थिंक यहाँ से प्रॉफेट मोहम्मद, कैलिफ सिस्टम और अबू बकर एंड अब्बासिद के बारे में एक क्लैरिटी मिला होगा। एनी डाउट इन इट? Is this concept clear or not? Should I repeat or just stop here? So now, तो अभी तक हमने ये देख लिया। ओके, अभी बैक टू द क्वेश्चन पे जाते हैं। Caliph is, so from our discussion, from our concept, we can Prophet Muhammad is the founder of Islam, you know, and Abbasid is from Abbasid Empire. Clear? So Abu Bakr will be the answer of the question number 13, is first caliph. Okay, now
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूडलिज्म कि फ्यूडलिज्म क्या है। तो थोड़ी देर फ्यूडलिज्म के बारे में देखा कि तो that discussion we can easily solve this question that feudalism is a political system, economic system, political economic system or political economic social system. So our answer will be D. Political, economic and social system. Clear? क्यों? क्योंकि सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो रीस्ट्रक्चर हो रहा है, राइट। तो ये तो क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था बाय फार्मर्स, फार्मर्स रेवेन्यू जनरेट कर प्रोडक्शन सिस्टम एनहांस, इसलिए एक इकोनॉमिक सिस्टम है एंड ये सोशल को मेंटेन कर रहा था, तो ये एक सोशल सिस्टम भी है। ओके, कि सोशल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर रहा था तो इसलिए पॉलिटिकल प्रोडक्शन सिस्टम रहा था, एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा था, स्ट्रक्चर है और सिस्टम है एंड सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहा था तो इस सिस्टम है। इज दैट क्लियर? क्या अभी स्क्रीन विजिबल है? नाउ स्क्रीन इज विजिबल। शीट जितनी भी राइटिंग थी वो सब चली गई है। नाउ स्क्रीन इज विजिबल, स्टिल नो। जस्ट अ मिनट। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। Tell me that now screen is visible or not. ओके, तो यहाँ तक मैंने जो भी लिखा था वो सेव नहीं किया था तो वो चला गया है, बट इट्स ओके। आई थिंक, आई होप कि ये आपको समझ आया कि ये सारी चीज़ें क्या है एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस आंसर्स। ओके, तो हमने फर्स्ट कैलिफ के बारे में देखा था अभी तक। अब सो पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म क्या है ये हमने देख लिया कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि फ्यूडलिज्म से पॉलिटिकल सिस्टम क्यों है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था। देन इकोनॉमिक सिस्टम क्यों है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट, तो ये सब कुछ हो रहा था, तो इसीलिए ये एक इकोनॉमिक सिस्टम भी है। सोशल सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा था। ओके, सोशल स्टेबिलिटी पे फोकस किया जा रहा था, तो इसलिए ये सोशल सिस्टम भी है। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 इज डी, feudalism is a political, economic and social system. Is that clear? Okay, now
What ways did अरब extend their power? किस तरीके से अरब ने अपने पावर किया था? तो सबसे पहले जब हमने अरबियंस को देखा था, जब हमने अरबियंस के बारे में स्टडी किया था, तब हमने देखा था सिविलाइजेशन है जिन्होंने बहुत सारे वेज को अपनाया था टू एक्सटेंड और टू एनहेंस देयर पावर। सो व्हाट ने क्या किया था, उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था, जगह को कैप्चर किया था। उस उन्होंने वर्ष its answer will be C, both of them. Arab extend their power by conquering or military conquest